रिकॉर्ड नहीं करा यार मैच। चलो इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट इज यूनिट वेक्टर बेटा? यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इफ r cap is a unit vector then mod of r bar is equals to 1. If a unit vector is generally represented by what beta? By placing a symbol of your inverted v over the vector. हम लोग ऐसे लिख रहे हैं basically, this is nothing but of your r cap is nothing but unit vector. Now see, mod of I cap is equals to mod of j cap is equals to mod of k cap, that is always equals to 1. But I cap is not equal to j cap and j cap is not equal to k cap because they have what? Different directions. Now see here, x axis is I cap, y axis is j cap and z axis is nothing but k cap. Angle between I and j is 90, angle between j and k is 90, angle between I and j, z is also equal to 90. So they are also called as of what beta? Orthogonal vectors. They are also called as of what? Orthogonal vectors. The next one is representation of a vector. Representation of a vector in terms of unit vector along the vector itself. So whenever we represent a unit vector, so vector can be specified what? Can be specified in magnitude and as well as of your direction both. If it is written as like a bar is equals to mod a into u a cap. U a cap is nothing but what? Unit vector in direction of a bar. And mod a represents me what? Magnitude. So unit vector is always represented by what? A bar divided by mod a. Example I am taking right now. A cap is equals to a bar by mod a. B cap is equals to b bar by mod b. V cap is equals to v bar by mod of your v. V is nothing but what beta? Velocity. V is nothing but what? Velocity. A cap is equals to a bar by mod of your a. What is a? A is nothing but right now for me acceleration. A and b are unit vectors. Let us try to do one problem better. Represent the following vectors in terms of your unit vectors. In terms of your unit vectors along coordinate axis. Along your coordinate axis. Isn't it? See, first question he has given for me, number one. Number one, it is saying right now, a bar is equals to 2 units due east. This is the first question. Number two, b bar is equals to 3 units due north. And third one is right now for me, c bar is equals to 4 units due west. And fourth one is nothing but d bar is equals to your 5 units due south. Okay, that means x-axis, y-axis and z-axis. Clear for me? This is your east, this is your west, this is your north and this one is your south. See here how we are written right now. I vector is a bar is equal to 2 units in which direction? So this one is nothing but of your I cap and this one will be equal to your j cap. Opposite of this one, if I am writing here, this will become for me what? Minus of I cap. If I am writing downward direction, this will represent me minus of j cap. Okay now? Okay? Chalo, yes. See, a bar is equals to. Now any vector can be represented as beta. Any vector can be represented by. How? I just now I told you. A bar is equals to its magnitude and also its direction. Clear? Isn't it? Now see, for the first one if I am writing, number one. What is the first one, Vela? First one is telling how much one? A bar is equals to 2 units due east. A bar is equals to 2 units due east. That means how do you write? A bar is equals to magnitude and direction. I cap. Second one is here, right? What is the second one? B bar is equals to 3 units north. J cap. 3 units. 3 J cap. B bar is equal to 3 J cap. B bar is equals to 3 times of your J cap. Third one you see right now. What he has given me third one? C bar is equals to 4 units due west. West means what will write? C bar is equals to 4 into minus of I cap. That means the answer is how much for me? Minus 4 I cap. Minus indicates the direction. Got it everyone? Yes sir. D bar is equals to 4 units due south. 4 units due south means D bar is equals to 5 into minus of your J cap. That is equals to minus of your 5 J cap will be the answer. Clear for everyone? Yes sir. समझ में आया बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो next heading, representation of vector, representation of a vector in terms of unit vector along coordinate axis, along your coordinate axis. So now we are talking about your representation of your vector in terms of your unit vector along your coordinate axis, along your coordinate axis part of relation. Okay, now see, for example, if I take any vector along x-axis and y-axis, say for example, this is your x-axis, this is your y-axis. Okay, now if I'm taking a vector like this here, this is a vector p, O2p is nothing but vector. With x-axis it is making an angle alpha, with y-axis it is making an angle, say for example beta. Then how do you write it right now for this one? See here, vector p bar is in the x coordinate and y coordinate beta. So इसका x coordinate क्या हो सकता है बताओ? इसको अगर मैं x axis में लिख रहा हूँ बेसिकली तो ये हो जाएगा px I cap. Okay, the same way this will become for me how much? Py j cap. यानी p bar will be equal to x axis में लिख रहे हैं तो px I cap plus along y axis में लिख रहे हैं तो yj cap. That means this is in Sir, P is a vector. 2 dimension. This is in your 2 dimension. In terms of your coordinates हम लोग लिख रहे हैं, that will be in terms of 2 dimensions part of relation. ठीक है सभी को? Yes, sir. Sir, P is a vector. Yes, sir. P is a vector बेटा. O2P is a vector. Sir. Okay. O2P is a vector. O2P is a vector part of relation. अगर मान के चलो P का कोऑर्डिनेट मैं दे रहा हूँ x, y, तो यहाँ पर एक इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो यहाँ पर से इस तरह से, तो ये हो जाएगा मेरे पास n, isn't it? तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? OP बार इज इक्वल्स टू, कोई बता सकता है? OP बार इज इक्वल्स टू ON बार प्लस NP बार लिख सकता हूँ ट्राइंगल लॉ में? Yes, sir. ये एक वेक्टर इस तरह से है, इसका डायरेक्शन में इस तरह से ले रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, वो n प्लस ऑफ योर NP ले सकता हूँ, तो वो n कौन सी डायरेक्शन में? दिस इज नथिंग बट ऑफ योर ON मैग्नीट्यूड अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस वन इज नथिंग बट I cap plus this one is nothing but magnitude of your n into your p bar along your which direction? J cap. So O2P अगर मैं R bar से अगर represent कर रहा हूँ right now, so this one is say for example R bar, so this R bar will be equal to how much better for me? Sorry. This R bar is equals to, this one is x I cap plus this one is y j cap. ऐसा भी लिख सकता हूँ. O2n x axis है और N2P y axis है, तो R bar is equals to x I cap plus y j cap. लिख सकता हूँ कि नहीं? समझ में नहीं आया? Yes, sir. O2n है x और जो है ना ये y है, ठीक है ना? Yes, sir. तो मैं ON को px भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम में px डाल रखा है, और ये जो O2P बार है दैट इज नथिंग बट p वेक्टर मान के चलो, ये पूरा p वेक्टर है, तो p वेक्टर या r वेक्टर होगा तो कैसे लिख सकता हूँ? अगर p में होगा तो pxi कैप प्लस py कैप, अगर r में है तो r बार इज इक्वल टू xi कैप प्लस ऑफ योर yj कैप. अगर ये वेलोसिटी देता मैं तो कैसे लिख सकते हैं? तो वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू vx I कैप प्लस vy j कैप लिखते हैं दो कोऑर्डिनेट्स में. अगर एक्सेलरेशन देता a बार इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अलोंग योर x एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग योर y Y-axis. कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं बेसिकली. अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बेसिकली, magnitude of this one is mod of your r, that is nothing but of your how much for me? O2p, that is equals to under root of your Pythagoras theorem, that is ON square plus of your NP square. ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड.
यानी mod of your r bar is equals to under root of your x square plus y Plus square, y square. the magnitude. ठीक है ना? If r bar is making an angle, if r bar is making an angle, is making an angle alpha with x axis, alpha with your x axis, तो मैं एंगल कैसे लिख सकता हूं? tan alpha is equals to mod of your y by your x. देखो डायग्राम, tan alpha is equals to, see the diagram right now, tan alpha is equals to, this one is y and this one is nothing but x, so y by x ही लिखोगे ना, tan alpha, so tan alpha is equals to your y by your x. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Clear है sir. Yes, sir, clear है. सभी को क्लियर है? Yes. पक्का पक्का? Okay, sir. ओके चलो, ये देखो बेटा, और एक पॉइंट लिख लो. अगर एक वेक्टर मैंने इस तरह से दे दिया, ये मान के चलो p बार है और ये मान के चलो अल्फा है. अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ एक्स एक्सिस में, तो ये px हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास py. अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ ऐसा, तो px कितना हो जाएगा बेटा? लास्ट टाइम मैंने बताया था px विल बी इक्वल टू योर p इंटू कॉस ऑफ योर अल्फा. Because of कितना बन जाएगा? p इंटू साइन ऑफ योर अल्फा. याद alpha. याद है किसी को? Yes sir, याद क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं? बस समझ में नहीं आया? आ गया sir, आ गया sir. आ गया सर. तो p बार इज इक्वल्स टू, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ px i कैप प्लस py j कैप. px वैल्यू इज हाउ मच फॉर मी? p इंटू कॉस अल्फा i कैप प्लस p इंटू साइन अल्फा j कैप लिख सकता हूँ. Yes sir. तो इन टर्म्स ऑफ योर टू डायमेंशंस. ठीक है, चलो. अगर मैं थ्री डायमेंशन के बारे में बात करूं, और थ्री डायमेंशन for three-dimensional vector, I'm talking about your three-dimensional vector, p bar will be equal to p xi cap plus p y j cap plus p z k cap. This is for what? 3D. ठीक है ना? px py and pz क्या हो जाएंगे? x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट. अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है मुझे, मॉड ऑफ योर p कितना बन जाएगा? मॉड ऑफ योर p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर, ये हो जाएगा px स्क्वायर, ये हो जाएगा py स्क्वायर, ये हो जाएगा pz स्क्वायर. तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड. So magnitude of this one is equals to under root of your px square plus py square plus pz relation. अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे? p कैप इज इक्वल्स टू p बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ p लिखोगे. वीडियो कॉल p बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ योर p. मॉड ऑफ p कैसे निकालोगे थ्री डायमेंशन में? अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर. टू डायमेंशन में होगा तो क्या होगा? z एक्सिस 0 ले लोगे. ठीक है ना? Yes sir. Yes, sir. समझ में आया? सर. यस सर. समझ में आया सभी को? ये कॉस कैसे लिया, साइन कैसे लिया? यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम बताया था. देखो आप लोग को एक बार मैं बता देता हूँ फिर भी, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. तो यहाँ पर आप लोग को बताया था मैंने, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कहीं बताया था मैंने आप लोग को, साइन कॉस जब ले रहे थे. हाँ, यहाँ देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा ए टू डी कितना है? देखो कॉस थीटा, जहां पर थीटा बन रहा है वहां पर कॉस थीटा आता बोल के बोला मैंने, बोला कि नहीं? बोले. और उसका परपेंडिकुलर मेरे पास बीडी साइन थीटा. ठीक है ना? यस सर. ओके चलो, एक बार रिवाइज देख लो. वीडियो तो ऑलरेडी रखा हुआ है, एक बार आप रिवाइज करके देख लो. समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक बार मैं समझा देता हूँ आप लोग.
तो 3 डायमेंशन में तो लिखने आ गया अपने को बेसिकली। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं तो विल अंडरस्टैंड इन स्टिल क्लियरली कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग फॉर द सिचुएशन फॉर द गिवन कंडीशन। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कहाँ चले गया यार। Find the magnitude. Find the magnitude and direction. Find the magnitude and direction of following vectors. So first one is a bar is equals to 3 I cap plus 4 j cap, and the second one is given for me b bar is equals to minus 2 I cap plus 2 root 3 j cap, and third one is given as c bar is equals to minus of 2 I cap minus of 2 j cap, and fourth one is given as d bar is equals to root 3 I cap minus of your j cap. ठीक है, डायग्राम के साथ मुझे बताओ जल्दी जल्दी से। फर्स्ट वाला क्या दिया देखो एक बार मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला a बार इज इक्वल्स टू ये हो गया 3 I कैप प्लस 4 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा पहले बताओ। मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। So that is equals to me 3 square is nothing but 9, 4 square is nothing but 16, तो ये हो गया रूट 25, तो ये हो गया कितना 5 यूनिट्स। इसके एंगल कैसे निकालोगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसका डायग्राम बताओ पहले कैसे ड्रॉ करोगे। 3 मतलब इस तरह से हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 I कैप बेटा एवरीवन। यस सर। 4 j कैप मतलब ऐसा हो जाएगा। यस सर। Yes, और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा रिजल्टेंट ये, और ये जो एंगल बनाएगा इससे ये हो जाएगा थीटा, और ये हो गया मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट 5 यूनिट्स। तो अब इसको मुझे निकालना है। तो यहाँ पर कितना था 4 j कैप और यहाँ पर 3 I कैप, यानी एंगल कितनी बनी tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना बना 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी थीटा इज इक्वल्स टू मच बेटा 53 डिग्रीज। मैजिक ट्रायंगल बोला था मैंने आप लोग को बेसिक मैथमेटिक्स में। यस सर, मैजिक ट्रायंगल। tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, तो थीटा कितना हो जाएगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट इज 4/3 5/3। या क्लियर है, मतलब कभी भी अगर ऐसा ट्रायंगल आ रहा है अपने को, तो ये अगर 53 डिग्रीज है तो ये 90 डिग्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। दिस इज नोन एज मैजिक ट्रायंगल। ठीक है ना। सेकंड वाला बताओ, कोई बता सकता है क्या, ट्राई करो। b बार इज इक्वल्स टू ये दे रखा है माइनस ऑफ 2 I कैप प्लस 2 रूट 3 j कैप। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मॉड ऑफ योर b बार इज इक्वल्स टू दिस वन इज अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 into रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो बना कितना देखो, दैट इज नथिंग बट 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 प्लस ये कितना बना 12 into 3 4 plus root 16 is equal to 4। ठीक है ना, इट इज रूट 3 यानी कितना हुआ 4 यूनिट्स। ठीक है ना। डायरेक्शन बताओ, कौन बता सकता है, देखो जल्दी से डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मतलब 2 वेक्टर इसमें, दिस इज माइनस ऑफ 2 I कैप और 2 रूट 3 j कैप, यानी ये हो गया इस डायरेक्शन, ये हो जाएगा 2 रूट 3 j कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा बताओ कोई, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट इस तरह से, या तो ये हो गया वेक्टर b बार, ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास थीटा, और ये बन जाएगा मेरे पास एंगल दैट इज नथिंग बट ऑफ योर अल्फा। तो कोई tan अल्फा बता सकता है क्या, देखो tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाउ मच फ्रॉम द गिवन फिगर,
tan alpha is equals to, कौन बता सकता है बोलो? अगर ये 2√3 है तो ये भी 2√3 होगा ना बेटा, पैरेलल। तो बना कितना मेरे पास 2√3 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो गया मेरे पास √3। tan अल्फा √3 मतलब अल्फा कितना 60, tan 60 कितना tan 60 √3. √3 ना। Yes sir. तो थीटा कितना बनेगा 60. थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180 अल्फा, minus 60. that is 180 minus 60, that will be equal to 120 degrees with positive x-axis। बना? Yes sir. समझ में आ रहा है? दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है सर। देखो और एक वाला भी कर लो, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। थर्ड वन आप लोग ट्राई करो एक बार। थर्ड वन क्या देखा देखो, आप लोग ट्राई करो। सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ 2j कैप। आप लोग एक बार पेपर लेके ट्राई करो जल्दी से, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। माइनस 2i मतलब कहां पर आएगा बेटा? ये हो जाएगा Negative x axis. माइनस 2j मतलब नीचे माइनस। नीचे negative y axis. तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर आएगा? रिजल्टेंट होगा इस तरह से, यानी एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी ये हो जाएगा थीटा, ये एंगल जो बनेगा ये हो जाएगा अल्फा। यू नो दैट वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स पैरेलली, तो ये भी 2 हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड एंगल से लेना देना कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दो, बताओ जल्दी से कितनी हो रही है। मॉड ऑफ योर सी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4, दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ 4 प्लस 4 इज नथिंग बट 8। तो कितना हुआ 2√2 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड निकल गया सभी को। अल्फा निकालो, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू हाउ मच 45 डिग्रीज। सो थीटा कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल्स टू 180 minus 45. प्लस अल्फा, क्योंकि एग्जैक्टली 45 है तो ये भी 45 ही होगा ना बेटा, Yes sir. isn't it? तो ये हो गया 180 प्लस ये 45, यानी कितना हुआ 225. 425 डिग्रीज। किसके साथ? विथ पॉजिटिव एक्स। समझ में आई? समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. चलो फोर्थ वन बता दो जल्दी से। टी बार इज इक्वल टू कितना दे रखा है √3i कैप माइनस ऑफ j कैप। पहले वेक्टर ड्रॉ करो इसका। तो इसका वेक्टर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेसिकली √3i कैप एंड ये नीचे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ j कैप, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ d बार, मैग्नीट्यूड ऑफ d बार ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ √3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। तो बना कितना है √3 स्क्वायर कितना क्या हुआ 3 plus 1. 3 + 1 तो कितना हुआ 2 मतलब 2 sir. 2 यूनिट्स। कहां से भी को जी sir. एंगल कैसे निकालोगे बताओ कोई? ये इसके साथ हो गया था √3 और ये हो गया था इस तरह से, तो इसका रिजल्टेंट होगा यहाँ पर किससे निकलेगा एक्स एक्सिस से, और ये जो एंगल बनेगा इसके साथ एंगल बनेगा, ये हो जाएगा थीटा। तो ये हो गया मेरे पास अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे बताओ? अगर ये √3 है तो ये भी मेरे पास कितना -1 है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा -1/√3. -1 √3. मैग्नीट्यूड में लेना है y/x अच्छा 1/√3. 1/√3 1/√3 मतलब tan 30. tan 30 Yes sir. पक्का। And 30. सो अल्फा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्रीज। 30 degrees. तो थीटा कितना हो सकता है कोई बता सकता है क्या? 300. थीटा इज इक्वल्स टू 270। क्यों?
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 प्लस 3 quadrant. 270 प्लस ये 90 में से 30 चले गया तो ये कितना हो गया 60, तो कितना हुआ 330. कितना बना 330. 3 कितना 330. बना 330. Yes sir. समझ में Yes sir. थोड़ा थोड़ा आ रहा शब्द पूरा आ रहा सर. पूरा आ रहा सर समझ. तो ये हो गया अपना resolution of the vector in your x axis and as well as of your y axis part of relation. सभी को क्लियर है ना? Yes sir. और कुछ एग्जांपल्स करवाऊं? No need sir. बाकी क्लियर है ना सभी को? Yes sir. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा. What do you mean by position vector? What do you mean by a position vector? What do you mean by a position vector? पोजीशन वेक्टर मतलब कुछ भी नहीं है बेटा. अगर मुझे आपकी पोजीशन बताना है तो पहले क्या करूंगा, रेफरेंस लूंगा ना कि आप सो एंड सो पर्सन से कितनी दूरी पे हो. आप मान के चलो आप अपने घर पे बैठे हो, आप अपने दरवाजे से कितनी दूरी पे हो, या आप अपने हॉल से कितनी दूरी पे हो, या आप अपने बेडरूम से कितनी दूरी पे हो, या अपने किचन रूम से कितनी दूरी पे हो. तो एक रेफरेंस होना बहुत जरूरी है आपकी लोकेशन करने के लिए. अगर मैं बोलूं आप अपने घर में हैं तो ठीक है भाई आप अपने घर में. अगर मुझे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए आपके घर में तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए कि आप सो एंड सो रूम से सो एंड सो दूरी पे है, तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. यानी पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई करने के लिए अपने को उसका लोकेशन यानी ऑरिजिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर ऑरिजिन नहीं है तो हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं बेसिकली. बात समझ में आई? Yes, sir. Sir. To define a position vector, we always need what? A reference. Origin हम लोग को Yes, sir. मालूम जरूरी है. अगर origin मालूम नहीं है तो मैं आपकी पोजीशन कभी भी नहीं बता सकता. ठीक है ना? Yes, sir. चलो. So what I can say is right now, a vector is a vector used to locate. A vector used to locate the position of a point in space is called position vector. Position vector. Position vector. ठीक है ना? A vector which is used to locate the position of a point in space is called as of your position vector. The point relative to which we require the displacement is called as reference point or origin. मान के चलो अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है y एक्सिस और ये हो गया मेरे पास x एक्सिस, ठीक है ना? तो मेरे पास यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है. मान के चलो दिस इज योर पॉइंट P x, y. अगर मुझे इसकी पोजीशन चाहिए तो मुझे चाहिए क्या, इसका रेफरेंस से चाहिए. दैट इज नथिंग बट 0 origin. जैसे अगर मैं एक वेक्टर ड्रा करूं ऐसा तो मैं इसको पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं. दैट इज नथिंग बट r बार. तो r बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास यहाँ पर, पोजीशन Position vector. तो r bar will be equal to how much for me here? This one is x I cap plus y j cap because it is defined in terms of your x coordinate and y coordinate. ठीक है? Yes, sir. So I can say that position vector depends on what? Reference point. That is nothing but origin. ठीक है ना? Position vector will always depend upon what for me? Reference point. Clear है? सर हमेशा origin ही रहता सर, reference point. कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से. अब मैं देखो आप अपने आपकी पोजीशन आपके किचन से बताना है तो किचन मेरा रेफरेंस हो गया. Yes, sir. ठीक है ना?
तो रेफरेंस जहां से पूछ रहे हैं वहां से आप हॉल से कितनी दूरी पे हो, तो हॉल विल बी माय रेफरेंस। यस सर, समझ गया सर। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन ले लो, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी बेसिकली। से फॉर एग्जांपल ए पार्टिकल in the xy plane, a particle in the xy plane is located at a distance 5 meter from the origin. 5 meter from the origin at an angle of 37 degrees. At an angle of 37 degrees with x-axis. Determine its position vector. Determine its position vector. इसकी पोजीशन वेक्टर चाहिए मुझे, तो जल्दी से ट्राई करो। पार्टिकल कौन से प्लेन में है बेटा? एक्स एंड वाई प्लेन में। तो पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लो आप। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है ना। तो 5 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या? 5 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या? 5 मीटर यहाँ से, कहाँ से? ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे है, यानी ये हो गया 5, ये हो गया सम वेक्टर पी। ठीक है ना। तो इसका अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये इसका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये कुछ एंगल बनाएगा। कितने एंगल? 37 डिग्रीज। 37 डिग्रीज दे रखा वाई है। एक्सिस 4 तो वाई एक्सिस कितना होगा और एक्स एक्सिस कितना होगा, ये हम लोग को पता है। 3 and 4। एक्स वैल्यू कितना लिख सकता हूँ मैं? एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू कॉस 37 बेटा। तो ये हो गया 5 इंटू कॉस 37 इज हाउ मच बेटा? 4/5, यानी ये हो गया 4 मीटर्स। ठीक है ना। तो y वैल्यू क्या हो जाएगी? y वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 5 इंटू साइन 37। जहां पर थीटा होगा वहां पर cos थीटा ले लो सीधा सीधा। ठीक है। सो 5 इंटू साइन 37 कितना होगा बेटा? 3/5। तो 5 चले गया, तो बचा कितना? 3 मीटर्स। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 3 और y वैल्यू आ गई 4। ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर आर बार इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स 4i कैप प्लस वाई जे कैप। सर क्या हो जाएगा? 4i कैप प्लस 3j कैप। ऐसा लिखोगे आर बार को। समझ में आया? यस सर, आ गया सर। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट वन कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट बेटा? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? shortest distance Shortest distance between 2 points. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, points। है कि नहीं? Yes sir। मान के चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। एक पॉइंट से अगर आप और एक पॉइंट पे जा रहे हो, दैट इज नोन एज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब मान के चलो आप अपने घर से अपने चाचा के घर को जा रहे हो या ताया के घर को जा रहे हो, तो आपके घर में और आपके ताया के घर के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि एक पॉइंट से आप लोग और एक पॉइंट को जा रहे हो। ठीक है ना। तो देखो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is what? Change in position vector. Change in position vector. Okay. It is generally represented by S bar बेटा। S bar से represent कर रहा हूँ basically। ठीक है ना। And it is independent of the origin बेटा। It is independent of origin. It is independent of origin. ठीक है ना। देखो कैसा है मैं बता देता हूँ। मान के चलो ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस। ठीक है ना बेटा।
तो मैं एक पॉइंट पे हूं समवेयर यहां पर P, मैं जा रहा हूं P एट x1 है मेरा और y कोऑर्डिनेट y1 है, तो मैं P से लेके और एक पॉइंट को जा रहा हूं, मान के चलो Q, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर बताओ बेटा, कौन बता सकता है? देखो पोजीशन वेक्टर कैसा करना है मुझे, 0 ऑरिजिन से लेके एक एरो मार्क ऐसा कर दो, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बता देगा मुझे r1 बार। ऑरिजिन से फिर मैं वो को एक लाइन मार दूं इस तरह से, तो ये हो गया मेरे पास r2 बार। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल को अटैच कर देना इस तरह से। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज राइट नाउ फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। तो कैसा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? S1 बार कैसा हो जाएगा? तो क्या ट्राइंगल लॉ बन रहा है? सीधा सीधा देखो, अगर दिमाग लगाओगे तो सीधा सीधा, तो क्या ट्राइंगल लॉ बन रहा है? ये दो वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, थर्ड वेक्टर टेकन इन द ऑपोजिट। सी फ्रॉम ट्राइंगल लॉ वो P बार प्लस P Q बार, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट नो, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, माइनस ऑफ Q बार वो Q बार मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी वो P बार प्लस P Q बार मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, वो Q बार क्लोजिंग ट्रायंगल, ठीक है ना? वो P बार इज हाउ मच फॉर मी, R1 बार प्लस P Q बार इज हाउ मच फॉर मी, S बार, how much for me, R2 बार। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट टू गो फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2, पॉइंट 1 को सा है, पॉइंट 2 को सा बेटा, ये पॉइंट और ये हो गया पॉइंट 2, ठीक है ना? पॉइंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूर फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर को जा रहे हो, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिखोगे, R2 बार माइनस R1 बार लिखोगे। बात समझ में आई? जी सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या मुझे कोई पोजीशन वेक्टर बता सकता है बेटा? R1 बार क्या हो जाएगा? R1 बार इज इक्वल्स टू, R1 बार इज इक्वल्स टू, कौन बता सकता है? R1 बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। R2 बार कितना हो जाएगा? R2 बार इज इक्वल्स टू x2 इंटू योर i कैप प्लस ऑफ योर y2 इंटू j कैप। लिख सकता हूं ऐसा? Yeah. R1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और R2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो x2 i कैप y2 j कैप इज R2, R1 इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर मुझे x1 और y1 में लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 बार कितना है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस R1, R1 इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो इसको सिंपलीफाई करो, ऑल द आई कैप्स एक जगह ले लो, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस ऑफ x1, ये हो जाएगा आई कैप प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप विल बी कॉमन फॉर दिस वन। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम योर 1 टू 2। बात क्लियर है? Yes, sir. x1 x2 अगर लिख रहे हैं तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन करो, आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। चलो, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अभी तो मैं आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, जैसे टॉपिक हो जाएगा हम लोग और अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। एक 2-3 दिन खाली हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए रखेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर द वेक्टर्स पार्टिकुलेशन, ठीक है? ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी displaces it from position vector r1 bar is equals to 2 i cap minus of j cap plus your 3k cap meters to r2 bar is equals to 5 i cap minus 2 j cap plus 4 k cap meters. So stop. Then find the displacement vector.
find the displacement vector. Okay ना? Okay? चलो क्या क्या दे रखा है देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे बेटा, अभी लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू r2 बार माइनस r1 बार। r1 बार r2 बार दे रखा है, r2 की वैल्यू डाल दो अब सीधा सीधा, 5i कैप माइनस ऑफ योर 2j कैप प्लस ऑफ योर 4k कैप। i में से i निकाल सकते हो, i में से j नहीं निकाल सकते बेटा, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ योर 3k कैप। तो कितना बना जाएगा, 5i कैप माइनस 2i कैप, तो ये बना कितना 3i कैप, 2 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1। उसके बाद 4 प्लस 7k कैप, ये हो गया प्लस k कैप, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा सभी को? yes sir, Yes, sir. क्लियर है? जी sir. So I hope you got an idea about your resolution of a vector in one dimension, two dimensions, part of relation, and also the what do you call that one, unit vector का एक concept हो गया अच्छा खासा। Then what is the date today बेटा? 30 ना? So this one was your 30/07/2020। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से यूनिट वेक्टर को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर को याद कर लो, और उसका रिप्रेजेंटेशन में मैंने करवा दिया। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कैसा करते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, और हम लोग थोड़े प्रॉब्लम्स भी कर लिए उसके साथ। देन वी हैव डन विथ योर पोजीशन वेक्टर, देन वी हैव डन विथ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके और साथ एप्लीकेशंस हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे, ठीक है? ओके सर नेक्स्ट क्लास मंडे है ना सर? हाँ, नेक्स्ट क्लास बोलना भूल गया मैं, नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे होगी, कल परसों अपनी क्लासेस नहीं होंगी। So we'll be taking the break. So most probably our next class will be on Monday. ठीक है? Thank you sir. Okay, sir. Okay, चलो।